Hello again. So today we are checking the next 3 months energies and what is there for our Cancerians. Kark Rashi. It could be sun, moon, rising. So I'm going to check the energies of the next 3 months for our Cancerian people. And hello everyone. You have landed to a page of Rahat by Meher. And my name is Kritika. And there's a small information that I wanted to share across with you that this video will be long, so you can check the complete video on my YouTube channel with the same name, Rahat by Meher. And please do subscribe, follow, comment. I would love to see your comment take what resonates with you and leave which does not go with your feeling. Just trust your intuitions. Okay, so I'm gonna take out 6 cards for the next 3 months. Already I've got 1 card, so I'm going to pick another 5 cards. So angels, please help me know the next 3 months energies for our Cancerians. Help me take out the right cards for them. Okay, I've got the cards with me. Let's just start and check what is coming your way, Cancerians. Okay, June is looking good for you guys. I mean, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, लग्जरी आने वाला है, बहुत सारा कंफर्ट आने वाला है. पर्सनली आपको सक्सेस, मतलब आपको काफ़ी टाइम से शायद कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज लग रहे हैं, तो मनी वाइज स्टेबिलिटी आने वाली है. एंड आप ना साथ साथ आपका जो आप थोड़े इंडिपेंडेंट होने वाले हो. आप बहुत सारा सेल्फ केयर जोन में जाने वाले हो. आई फील आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो और आप जून में भी उसको कंटिन्यू करने वाले हो. एंड लेट मी टेल यू, आपने ये जो चीज़ शुरू करी है ना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इसकी वजह से यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द अबंडेंस, अट्रैक्टिंग ऑल द मनी, ऑल द कॉन्फिडेंस. सो प्लीज़ इस पे डू स्टिक टू इट एंड प्लीज़ डू इट, बिकॉज जून मंथ इज अगेन पुशिंग यू फॉर द सेम थिंग. लाइफस्टाइल बस थोड़ा हेल्दी रखो, सेल्फ केयर नहीं कम करना है. यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जी ऑल्सो, राइट? बिकॉज आई फील अगेन Cancerians, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, सो यू नीड टू बी ग्राउंडेड. सो आपको every day just please do at least 5 minutes of a grounding meditation or exercise, so that this will actually help you and will keep you grounded, which is very much important. क्योंकि आप grounded रहेंगे तभी you'll be able to get the stability. You'll be able to maintain that financial investments with you. You'll be able to hold the money which is required for the moment. And also I feel this is basically for the healers also, because बहुत सारे Cancerians usually healers energies और vibrations carry करते हैं. तो ये उनके लिए भी है who are into occult science और who are into healing modalities और so आप ना further कुछ learn करने वाले हो जून मंथ में. You will be, I think you are already attracted towards some new modality of healing, or maybe you're going to get some new knowledge जिससे आपका wisdom बढ़ने वाला है. And you're going to find some new mentor also, right? So ये जो mentor आपकी लाइफ में आने वाले जून मंथ में, this mentor, he or she will definitely give you some new knowledge, new wisdom, which will be very good for you. And हो सकता है कि आप बहुत सारे Cancerians जो आई थिंक टीचिंग लाइन में ट्राई कर रहे हैं, काउंसलिंग लाइन में ट्राई कर रहे हैं, सो दिस जून मंथ इज गोइंग टू गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी. एंड अगेन सेल्फ केयर करना मत भूलना प्लीज़, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आप जितना सेल्फ केयर, जितना सेल्फ लव करोगे, जितना अपने आप को अच्छे से रखोगे, सुबह उठ के रेडी होगे, उतना मतलब आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना. ओके, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, तो ये चीज़ आप प्लीज़ मत भूलना. एंड यू हैव टू डू अ ग्राउंडिंग मेडिटेशन और एक्सरसाइज, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होने वाला है आपके लिए जून में. अदरवाइज सब कुछ आपके सिर्फ इसी पार्ट में, इसी दिमाग में ही बहुत कुछ चलता रहेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर सेल्फ स्टेबल. ओके, लेट्स जस्ट मूव फर्दर एंड चेक कि जुलाई मंथ क्या कह रहा है हमारे Cancerians के लिए. Okay, July month is sounding
गुड, ओके, ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप एक्चुअली फाइनेंस से अगर देखा जाए तो आप और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो, स्मार्ट प्लानिंग करने वाले हो फाइनेंसेस से रिलेटेड, एंड एक्चुअली यू आर गोइंग टू take a you're going to step into your king energy, okay, king और queen energy में आप step in करने वाले हो, basically तो king energy में आप step in करने वाले हो, so you're going to take a very wise decision, बहुत इंटेलेक्ट डिसीजंस लेने वाले हो, कुछ सीरियस कमिटमेंट्स भी आपकी तरफ आ सकते हैं, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टैंड ऑन इट। सो इन शॉर्ट, जो जुलाई मंथ है, इट इज साउंडिंग गुड टू यू, यू विल बी विद द गुड एनर्जीज। आप यू नो व्हाट, इवन दो इन जुलाई ना आप बहुत ज़्यादा फॉर चैरिटी में जाने वाले हो, फॉर गिविंग करने वाले हो, बिकॉज जून मंथ में जो आप एक नया विजडम आपको जो मिलने वाला है ना, विद योर ओन प्रैक्टिस और मे बी फ्रॉम एनी ऑफ योर न्यू मेंटोर, ये आपको फर्दर पुश करने वाला है टुवर्ड्स a healing of your heart. Your heart chakra will be healed in the July month by you're going to do a lot of charity. आप donations करने वाले हो और आपको करना भी चाहिए, because जो financial stability आपको मिलने वाली है उसके लिए आपको सेम टाइम पे यूनिवर्स हमें जो दे रहा है हमें उसे आगे पास ऑन भी करना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे लोग हैं, बहुत सारी यूनिवर्स में जानवर, पंछी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंसानों पे डिपेंडेंट है। तो अगर परमात्मा हमारी मदद कर रहा है तो एट द सेम टाइम वी हैव टू पास द सेम थिंग टू द पीपल हु आर इन नीड। सो प्लीज़ डू सम चैरिटी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। And yes, your heart chakra will be balanced for sure when you do this, and please forgiveness meditation करना मत भूलना इन जुलाई। इन फैक्ट आई वुड एडवाइज आप जून से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा ना अभी तो बैलेंस नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली नहीं है। आपको पहले अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू फॉरगिव द पीपल ऑल्सो, राइट। आई नो ये कहना आसान है कि हम कैसे फॉरगिव करते हैं, बट अंडरस्टैंड, जब हम एक पेन को, एक डिच को बहुत टाइम तक अपने अंदर कैरी करते हैं ना, तो इवेंचुअली वो हमारी बॉडी को हार्म करने लगता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे कंसेलियंस, प्लीज़ फॉरगिवनेस मेडिटेशन करो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको एक ही दिन में एकदम आप रिलीफ हो जाओगे और आप सबको फॉरगिव कर दोगे, नहीं होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस, बट फर्स्ट स्टार्ट फॉरगिविंग योरसेल्फ। आप अपने ऊपर ही इतना गुस्सा है, आपको लगता है कि अरे मैंने वो डिसीजंस क्यों लिए, काश मैंने ये कर लिया, तो नहीं हुआ, दैट्स ओके। और लाइफ में जब ऐसी की सिचुएशंस आती हैं, इसलिए आती हैं ताकि हमें एक्सपीरियंस मिले, उन्हीं एक्सपीरियंस की बेसिस पे हम आज के डिसीजंस ले पा रहे हैं। थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ओके। सो प्लीज, ओके, अदरवाइज जुलाई मंथ विल बी गुड फॉर यू। यू विल बी इन योर ओन जोन, आप फुली अपने जोन में होने वाले हो, अपनी एनर्जीज में होने वाले हो। सो लेट्स जस्ट चेक योर अगस्त मंथ एनर्जीज। ओके, सो अगस्त मंथ डेफिनेटली आपको ये सिखाने वाला है दैट यू हैव टू बैलेंस योर you have to balance your work and your personal life, because जून मंथ में भी आप जो भी एनर्जीज आपके साथ रहेंगी, which is going to give you a lot of work also at the same time, a lot of financial stability, investment, और आप फर्दर एक लर्निंग की तरफ भी जा रहे हो। तो इन सब के साथ साथ ना आप थोड़ा सा टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे। बट अगेन जो अगस्त मंथ विल टेल यू टू इज गोइंग टू ask you to please maintain your balance. You have to balance, मतलब आपको अपना पर्सनल सेल्फ केयर भूल नहीं जाना है, या अपनी फैमिली को टाइम देना भूल नहीं जाना है, या अपना फन करना नहीं भूल जाना, अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूल जाना है। काम करो, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी बताना चाहिए कि वेयर टू स्टॉप, ओके। ये डेफिनेटली आपके साथ होने वाला है। एंड अगेन आपको इमोशनल बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली वर्क लाइफ बैलेंस, यू हैव टू बी वेरी मच इमोशनल बैलेंस भी आप करना शुरू कर देंगे बाय द टाइम अगस्त मंथ जब आएगा। दोज एनर्जीज विल बी अराउंड यू, और बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी करने वाले हो। अगस्त मंथ बहुत बिजी रहने वाला है, आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी करने वाले हो, विच इज़ अ गुड, ठीक है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काइंड ऑफ आप
थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने वाली है, तो मल्टीटास्किंग करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा, थोड़ा सा एनर्जी अप एंड डाउन होगी, तो प्लीज़ उसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कोशिश करना कि वेन एवर यू फील योर स्ट्रेस और यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस और समथिंग, जस्ट लीव एवरीथिंग, ठीक है। डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑफ 4-6-4, और एटलीस्ट डेली आप थोड़ा सा प्राणायाम और मेडिटेशन करना, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज अगस्त मंथ आपका बहुत बिजी जाने वाला है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने वाली हैं, एंड या आई मीन ओवरलोड होगा थोड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि अगस्त मंथ में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस अवॉइड करना है, काम को प्रायोरिटी देनी है। कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ अगर करने जाएंगे तो विल बी टफ फॉर यू, ठीक है। दैट्स वन थिंग। और ओके ओके, द अनदर थिंग इज ओके, सो बिकॉज ऑफ इट यू विल हैव अ गुड फैमिली टाइम ऑल्सो। इसमें आपको बहुत अच्छा एक फैमिली टाइम होने वाला है, और आई कुड फील दैट कुछ कंसेनियंस हु आर लुकिंग फॉर अ मैरिज और टू मूव फर्दर इन रिलेशनशिप, दे विल हैव अ गुड टाइम। मैरिज इज ऑन द कार्ड्स इन ऑगस्ट। आपको आपके करियर वाइज भी सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। इमोशनल वेलबींग, अगेन I told you, you have to work on that. You have to maintain your peace for sure. अच्छा टाइम रहने वाला है, ओके। अगस्त में थोड़ा बस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क बढ़ने वाले हैं, वहाँ वही आपकी उस टाइम पे ये लर्निंग होगी दैट हाउ यू गोइंग टू मैनेज, हाउ यू गोइंग टू बैलेंस एवरीथिंग। अदरवाइज विल बी अ गुड मंथ फॉर यू. That's what I feel, and the energy is gonna be good. You'll be happy go, and I feel you might go for some family trip. ऐसे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आप ट्रिप में जा सकते हैं. सो इन शॉर्ट अगर हम ये 3 months का देखें तो कैंसेरियंस के लिए 3 months आर लुकिंग गुड. आई मीन इट जस्ट उनको सेल्फ केयर करना बंद नहीं करना, उनको सेल्फ लव करना बंद नहीं करना. एट द सेम टाइम दे विल बी गेनिंग सम न्यू नॉलेज. ओके, इट कुड बी रिलेटेड टू देयर करियर, इट कुड बी रिलेटेड टू, आई मीन दे आर गोइंग टू मीट अ न्यू मेंटोर ऑल्सो. एंड जो भी आप न्यू आप चीज़ें सीखने वाले हो, that you're gonna continue in July, and that thing will give you a result in August. So things looks good for my Cancerians. So let's just see what is the advice from our angels or spirit guides for our Cancerian. Let's see. Okay, they're saying let go. They're saying I let go of the things that I have outgrown. So they are very clearly saying the angels suggest that you let go of any dead weight in your life, whether that's a toxic relationship, a job that's no longer fulfilling, or simply some negative thinking patterns. This will make a space for a positive new things to come into your life. That's what even the cards were saying, कि आपको forgiveness करना है, आपको बहुत सारा the things which you feel is not working out and it's actually giving you a stress, just get rid of it. Okay, just get rid of it, because when we remove negativity or the things which is bothering us, जो हमारी vibrations को down करते हैं, the moment we take those things out from our system, we get the space for the positive things to come in our life, and that's how we vibrate also. Okay, so that's a very important advice for you all, my Cancerians. So please take care of yourself, love yourself, lot of blessings, take care.